अमेरिका ने बांग्लादेश को जंगी हथियार देना शुरू कर दिए। बांग्लादेश को ताकतवर बनाने के लिए जंगी गाड़ियां दी हैं और बांग्लादेश की ताकत को बढ़ा दिया है। अमेरिका की तरफ से जो मुआहदे किए गए अमेरिका के साथ बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ, वो पूरे कर दिए गए हैं और बांग्लादेश को जंगी गाड़ियां दी गई हैं जो जंग के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো 91টি ম্যাক্স প্রো এমআরএপি ভেহিকলের ডেলিভারি পেয়েছে। 2019 সালে সর্বপ্রথম 50টি ম্যাক্স প্রো এমআরএপি কেনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এরপর 2021 সালে 39টি, 2022 সালে 33টি এবং সর্বশেষ 19টি, মোট 91টি এমআরএপি কিনেছে সেনাবাহিনী। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র থেকে টোটাল 141টি মাইন রেসিস্ট্যান্ট অ্যাম্বুশ প্রোটেক্টেড ভেহিকল সেনাবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে। তথ্যসূত্র ডিফেন্স সিকিউরিটি কর্পোরেশন এজেন্সি এবং অ্যাক্সেস ডিফেন্স আর্টিকেলস। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাক্সেস ডিফেন্স আর্টিকেলের আন্ডারে মাইন রেসিস্ট্যান্ট অ্যাম্বুশ প্রোটেক্টেড ভেহিকলের ডেলিভারি পেয়েছে। ম্যাক্স প্রো এমআরএপি হল আমেরিকার প্রতিষ্ঠান ন্যাভিস্টার ইন্টারন্যাশনালের তৈরি করা একটি অত্যাধুনিক এপিসি যা 10 জনের মতো সৈন্য বহন করতে সক্ষম। এমআরএপি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে মাইন রেসিস্ট্যান্ট অ্যাম্বুশ প্রোটেক্টেড, অর্থাৎ এপিসি গুলো মাইন আইডি রেসিস্ট্যান্ট। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব এলাকায় অবিস্ফোরিত শেল এবং মাটিতে পুঁতে রাখা মাইন আইডি থাকে সেসব এলাকায় সৈন্য পরিবহনে এ ধরনের এপিসি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই এমআরএপি অন্যান্য প্রচলিত এপিসির থেকে আলাদা কারণ এর পেটের বা বডির নিচে থাকা ভিশেপ আর্মর। এই আর্মর এর মাইন সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই আর্মর ভিশেপ হওয়ার দরুন মাইনের আঘাত পুরোটা এক জায়গায় না লেগে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যে কারণে আর্মর ও ভেহিক্যালের ক্রুরা অক্ষত থাকে। এই ভেহিক্যালগুলো মেশিন গানের গুলি থেকে সুরক্ষিত। এর শক্তিশালী আর্মর এসব ইম্প্যাক্ট সহ্য করে ক্রুদের প্রাণ বাঁচাতে পারে। এছাড়া এতে একটি 12.7 mm এর হেভি মেশিন গান, সেই সাথে স্মোক গ্রেনেড বহন করতে পারে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই এমআরএপি গুলো দেশের পার্বত্য অঞ্চলের পাশাপাশি জাতিসংঘ মিশনেও কিছু সংখ্যক মোতায়েন করবে। সেনাবাহিনী সম্প্রতি মোবাইল ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম ক্রয় করেছে। এসব ইসিএম, জ্যামার, রিমোটলি অপারেটেড অ্যাক্টিভেটেড আইডির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এসব জ্যামার সিস্টেমগুলো সেনাবাহিনীর আর্মড ভেহিকল, এপিসি, এমআরএপি, এলএভিতে বসানো হয়। নতুন এই জামারগুলো খুব সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা ম্যাক্স প্রো এমআরএপিতে ইনস্টল করা হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপুল পরিমাণ আর্মড ভেহিকলের প্রয়োজন। আর্মড ভেহিকলের মধ্যে এপিসি, এলএভি, এফভি, আইএফভি, এমআরএপি এগুলো অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনেক আগে থেকেই হিউজ পরিমাণের BTR-80 ব্যবহার করে আসছে, তবে এই এপিসি গুলো আইডি মাইনের বিরুদ্ধে কার্যকর নয়। এজন্যই তুরস্ক থেকে কোবরা 2 এলএভি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যাক্স প্রো কিনেছে সেনাবাহিনী। তবে সেনাবাহিনীর প্রায় 600টি এলএভি ও 300টির মতো এমআরএপি প্রয়োজন। সেনাবাহিনী সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, তবে সেনাবাহিনীর উচিত এক্ষেত্রে ভ্যারাইটি নিয়ে আসা। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সাউথ আফ্রিকা থেকে আরো অন্য কোনো এমআরএপি ক্রয় করা, কারণ সাউথ আফ্রিকার এমআরএপি গুলো পৃথিবীর সেরা। যুক্তরাষ্ট্রের এমআরএপি এর বড় একটা অংশ সাউথ আফ্রিকার টেকনোলজি বিদ্যমান। M80V, RG33, RG31, বাফেলো সহ বাংলাদেশের হাতে একাধিক অপশন রয়েছে। তো এখন এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि एमआरएपी बांग्लादेश को मिल चुकी हैं और ये बांग्लादेश की ताकत को भी बढ़ा देती हैं। अगर आप देखें तो जमीनी सतह पे जो जंग होती है वो बहुत ही अहम होती है और दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना, दुश्मन के ऊपर हमला करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर लैंडमार्क की बात करें तो म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश का जमीनी बॉर्डर बहुत बड़ी तादाद में लगता है और साथ ही साथ इंडिया के साथ बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन अप भारत के साथ शेयर करता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को एमआरएपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो अमेरिका ने बांग्लादेश को ये गाड़ियां दे दी हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की फौज पेट्रोलिंग भी अच्छे तरीके से कर सकती है और जंग के अंदर ये बांग्लादेश के लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी की बात है। और जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने
अमेरिका के सदर के साथ जाकर जो मुआहदे किए, अब उनका हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पर अमेरिका को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनको बांग्लादेश को इस वक्त ज़रूरत है एटमी हथियारों की, क्योंकि हम लोगों ने देखा कभी म्यांमार की तरफ से शरारतें की जाती हैं और कभी भारत की तरफ से धमकियां लगाई जाती हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश को अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में के अंदर कहीं से भी जंग शुरू होती है तो बांग्लादेश फुली तैयार होकर बैठा हो। और अमेरिका ने ये जो MRAP गाड़ियां दी है बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश की फौज को दुगना कर देंगी, उनकी ताकत में इजाफा कर देंगी। बिल्कुल वसीम भाई, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश की आर्मी को कमजोर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में किया गया। शेख हसीना वाजिद जब भी कोई बड़ा मुआहदा करती, चाहे वो फ्रांस के साथ होता, चाहे वो अमेरिका के साथ होता, तो नरेंद्र मोदी हमेशा बांग्लादेश की मुखालफत करते रहे, बांग्लादेश को बड़े हथियार खरीदने से रोकते रहे, और शेख हसीना वाजिद भी वैसा ही करती रही। लेकिन आप देखें तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बड़े मुआहदे जो किए गए अमेरिका के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, फ्रांस के साथ, वो थे बांग्लादेश की दिफा को लेकर, वो थे बांग्लादेश की आर्मी को लेकर। तो बांग्लादेश की आर्मी को मजबूत बनाने का मिशन अब पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की आर्मी को मजबूत बना रहे हैं, और जिन चीज़ों की बांग्लादेश की आर्मी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही चीज़ खरीद कर बांग्लादेश की ताकत को मजबूत किया जा रहा है। ज़मीनी सतह के ऊपर तो अमेरिका ने मदद कर दी, और साथ में हम लोगों ने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिजाइया ने मिलकर साथ में मशकें करना शुरू कर दी, और पाकिस्तान के मिसाइल जो हम लोगों ने देखे थे वो बांग्लादेश के पास इस वक्त मौजूद हैं, और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की फिजाइयों को मजबूत कर दिया गया, और बांग्लादेश की जो ज़मीनी सतह पर फौज लड़ने वाली है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हो चुकी है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान गोला बारूद देगा, तो वो पाकिस्तान ने दिए, और उसके बाद भारतीय मीडिया को भी देखा आपने किस तरह वो चलाता रहा, किस तरह वो चीखता रहा, और आप देखें तो बांग्लादेश काफी मजबूत होता जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।